Good evening everyone. In previous video we have done 3.3 up to 6 questions. In this video we'll do further from 7. So this is your question. We have to find x, y and z. So by alternate angles, angle y is equals to 40. Now we have find angle y, so we can find z also by taking angle 1 plus angle 70 equals to 180 degree, linear pairs. So angle 1 is equals to 110. So this is 110, this is 40. So ये आपका हो जाएगा 110 plus 40 plus z equals to 180 degree. Angle sum property, z is equals to 30 degree. ठीक है. Now z भी आ गया, ये भी आ गया. We have to find x. So ये और ये आपका vertically opposite हो जाएगा. So angle 1 equals to angle x. Vertically opposite. So this is 110. So angle x equals to 110. So x is 110, y is 40 and z is 30. Question number 8. Given figures guns and runs are parallelogram. Find x and y in lengths in centimeter. So आपको दिया हुआ guns and runs. I'll just make the diagrams. Now these are the questions. Okay, there is guns and runs. तो हमें solve करना है for we have to find x and y centimeters में. So we know parallelogram में opposite sides are equal. इसको हम इसके equal रख लेंगे और ये वाले को इसके equal रख लेंगे 18. यहाँ पे x जो है वो 6 सेंटीमीटर्स में करना उन्होंने कहा है. y जब हम करेंगे तो दैट विल बी 8 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स, 27 बन जाएगा तो 9 आ जाएगा. इन दिस डायगोनल्स आपके सेम होते हैं. सो y plus 7 equals to 20, x plus y equals to 16. y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 13 सेंटीमीटर्स आ जाएगी. इसमें 13 डालेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा. x will be 3 centimeters. This was very simple question number 8. Now going towards ninth question. Ninth question में उन्होंने कहा है it is risk and q are parallelograms. Find x. In question 9 we have to find x. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Let this be angle 1. So angle 1 plus 120 degree equals to 180 degree. It is linear pair. Adjacent angles. So angle 1 is 60 degree. Let this be angle 2 and this be angle 3. So angle 2 is equals to 70 degree. अगर हम ये देखें, sorry, angle 1 is equals to ये वाली अगर देखें हम चीज, तो ये यहाँ पे f बन रही है. So ये 1 और 2 इक्वल होगा because corresponding angles. f बन रहा है, so angle 2 will be equals to 60 degree. Same angle 3 will be equals to 70 degree because corresponding angles again. f बन रही है. Take this angle as 4. So angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Angle sum property. So इनको जब हम values डालेंगे, plus angle 4 equals to 180, angle 4 is equals to 50 degree. So angle 4 is equals to x. Angle x vertically opposite है, so angle x is equals to 50 degree. This is your answer, right? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 70
और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, ये 60 फाइंड करके ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट। सो 70 और 60 130, एक्स फिर यहाँ से आ जाता, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे इसको वर्टिकली ऑपोजिट कर लो, सेम थिंग है, आंसर 50 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, which of the two sides are parallel? Now in this question, question number 10, this is your 80, this is your 100. So they told that कि बताइए आप ये ट्रेपेजियम कैसे है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके एडजेसेंट लाइंस होती हैं ये पैरेलल कब होती हैं, जब उनके एडजेसेंट एंगल्स 180 है। सो 100 प्लस 80 इज 180, ठीक है, इसका नेम दिया है कुछ KLML। सो एंगल K प्लस एंगल L शुड बी 180 डिग्री अगर पैरेलल हो। सो KL इज पैरेलल टू LMN, ये पैरेलल का साइन है, ओके। सो प्रूव्स दैट दिस इज अ ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है और दूसरी दो साइड्स नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। नाउ what was this? 11th question is you have to find angle C if AB is parallel DC. Wait, हाँ जी, इसमें आपको फिगर दी है ऐसे करके कुछ, मान के चलते हैं ऐसे है, ऐसे ही है, सॉरी 120। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नाउ इन 11 क्वेश्चन उन्होंने कहा है वी हैव टू फाइंड दिस, और उन्होंने एंगल बी दे दिया और उन्होंने कहा है पैरेलल है एंगल AB इज पैरेलल CD, ये और ये पैरेलल है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हमने यहीं पे एंगल मान ले लेंगे, सॉरी यही चीज लेंगे। सो ये और ये प्लस करेंगे 180 आएगा। सो इसकी जब हम वैल्यू डाल देंगे, सो आर एम ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री। पैरेलल में ऐसे होगा, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, साइड वाले, बिकॉज पैरेलल लाइन पे जो एंगल्स होते हैं दे आर एडजेसेंट और 180 के इक्वल होते हैं। सो दिस बिकेम्स 60। क्वेश्चन नंबर 12, सो इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव गिवन अ फिगर, इसमें दिया हुआ है ये चीज RS 130 डिग्री QP। सो इन दिस फिगर इट इज गिवन SP जो है वो पैरेलल है RQ के, ठीक है, और आपने फाइंड करना है MR। सॉरी, आपने फाइंड करना है एंगल P, M ऑफ एंगल P एंड M ऑफ एंगल S, ठीक है। इफ ये दोनों पैरेलल है तो व्हाट वी विल डू, एडजेसेंट होंगे, ये एडजेसेंट होंगे तो ये 130 है तो ये 50 बन जाएगा, और ये
ये आपका 90 बन जाएगा। डन। इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट नहीं देखेंगे बिकॉज पैरेलल लाइंस के एडजेसेंट एंगल्स 180 होते हैं। सो m of p will be 50, m of s will be 90। ये पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल में वी डोंट सी वर्टिकली ऑपोजिट, ओके, रिमेंबर दैट। सो वी हैव कंप्लीटेड। अगर ये हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, आई विल टेल वंस। एडजेसेंट एंगल्स है, सो यहाँ पे आप Q की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे आपका एंगल P आ जाएगा m of 50 डिग्री। ऐसे ही ये करेंगे तो आ जाएगा m of s is equals to 90 डिग्री। These are quite simple questions, okay? So आगे भी आपको कुछ दिया हुआ है उसके, is there more than one method to find MP? तो MP के लिए आपके पास एक और मेथड है, कैसे, m of p। तो ये तीनों है आपके पास, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स का लगा दो, 360 इक्वल करोगे तो ये फिर भी 50 आएगा। सो वी हैव टू मेथड्स, सिंपली ऐसे कर दो, यहाँ तीनों को प्लस करके ये चीज कर दीजिए, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड 3.3। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट 3.4 पेज 55। सो टिल देन, like, share and subscribe. Thank you for watching.